टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज की खबरों की शुरुआत हम जेपी नड्डा से करते हैं, जो कि 3 दिन के लिए अब पंजाब में ही रहने वाले हैं। हालांकि वो हरियाणा के आज उस दौरे पर थे और आपको बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा ने पहले सुबह सीएम सैनी के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद पीजीआई के कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिलान्यास करी और जेपी नड्डा खासतौर पर अब कहा जा रहा है कि वो 3 दिन तक यही रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब के। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राष्ट्रपति शासन तक की बात कह दी। कहते पंजाब में वो लखनऊ जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह का तख्ता पलट हुआ था, सीएम मान का भी वही तख्ता पलट होने की तैयारी है, इस चीज का दावा किया और इस बारे में उन्होंने खास बातचीत जो है आज हमसे की है। सर इन्हें दावे ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 100% फेलियर है और पंजाब सरकार तो बिल्कुल ही फेल हुई है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आपको बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो है घुमन ब्रदर्स, बहुत ही नामी जो एडवोकेट्स हैं, उन्होंने आज पार्टी में वो शामिल हुए हैं। उनसे हमने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या खास कहा, आइए आपको एक बार वो भी सुना देते हैं कि किस तरीके के साथ उन्होंने कहा कि आप पंजाब के पॉलिटिक्स में वो एक बड़ा जो है रोल अदा करने वाले हैं। इंटरस्टिंग तो डेस्टनी ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਡੈਸਟਨੀ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਮ ਨਾਟ ਡਿਨਾਈਂਗ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਮਕੋਕਾ ਬਣਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਐਸੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਹ ਦੇਖੋ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 7 सांसद ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਯੰਗ ਸਟਾਰ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ 7 ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ, ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 7 ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੜੇ ਕਰੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ करो इंडिया दे, पर तुसी 90% इशू साढ़े पंजाब दे खड़े करो। पंजाब की राजनीति गलियारों में ये बात गरमाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि जो 1 मई को सेशन बुलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं फ्लोट है। हालांकि सरकार भी ये बात कह रही है कि तो क्या होगा जब हमारा बजट गिरेगा तो सरकार कैसे गिरेगी, लेकिन इसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। और लेकिन अब कल क्योंकि सेशन है उससे पहले जो है कैबिनेट बैठक 9:30 बजे बुलाएगी, कहा जा रहा है कुछ बड़ा जो है बिल भी आ सकता है। अब अखीर में बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो नफर सिंह राठी की पत्नी से आज हमने बात की, उनके न्याय को लेकर वो अभी उसी जद्दोजहद में लगी हुई हैं। उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों तक के ऊपर भी जो सवाल खड़े कर दिए। उनसे हमने खास बातचीत की उनके बेटे से और नफर सिंह राठी की धर्मपत्नी शैली से। उन्होंने क्या खास कहा ये आपको सुना। जो मसला 2024 में था, जो मसला 2025 में था, अब 2026 चल चुका है। मसला जहाँ था वहीं का वहीं है, कोई भी उसमें आगे कार्रवाई नहीं है। तो हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए या तो आपके माध्यम से
या फिर कोर्ट के माध्यम से अपने के न्याय लेने के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा हमें। इस सरकार से एक यही तो उम्मीद रखते हैं कि न्याय करो, न्याय करो। तो सीबीआई जो है उसको अपनी कठपुतली मत बनाओ। सीबीआई जब भी हमारे से बात होती है, सीबीआई का एक ही कहना है कि मैडम हमारे ऊपर दबाव है। सीबीआई हमारे के अधिकारी कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव है। जी, सीबीआई के अधिकारी कहते हैं ये बात कि हमारे ऊपर दबाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कैसा दबाव है? कि भाई इस केस को जैसे चल रहा है वैसे ठंडे बस्ते में रहने दो। कब तक रखेंगे? जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कहाँ तक रखेंगे इसको ठंडे कोर्ट का बस्ते कब रुख करने वाली है? आपने कहा कि सीबीआई कह रहे हैं, आपने सीबीआई के अधिकारियों से बात की थी, किसका प्रेशर है, क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं? सरकार का, सेंटर, दोनों सरकारें मिली हुई है। जी, हरियाणा सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार भी, दोनों सरकार मिली हुई है नफे सिंह राठी के मर्डर में कराने में भी और इस केस को ना खुलने देने में भी। तो अधिकारी अगर आपको क्लियर बता रहा है तो हमारा फर्ज बनता है उस अधिकारी के बारे में बताना। जब उसने क्लियर ये कह दिया कि जी मैं तो खोलना चाहता हूँ लेकिन सरकार का मेरे ऊपर दबाव है, तो इसका मतलब सरकार का दबाव। आप लोग कोर्ट का कब रुख कर रहे हैं? देखिए, अभी हम अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे पूरा काम करके और जल्द ही हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक पिटीशन डालेंगे और उसके बाद हम अपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और उसके बाद हम अपनी खापों को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि नफे सिंह राठी जी का मर्डर पैसे देकर कराया गया है। अगर हमारी कोई गैंगवार होती तो मैं अपने दिल को तसल्ली देता और मैं सबके सामने भी कहता भाई आज उनका दाव लग गया, मेरे पिताजी की हत्या होगी, उनका दाव लग गया। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गैंगवार में मर्डर नहीं है, मर्डर कराया गया पैसे देकर। किसने करवाया? जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिनका नाम है FIR में। अगर 7 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, अगर सीबीआई ये कह रही है 7 करोड़ में मर्डर हुआ है और 2 करोड़ रुपए शूटर बता रहे कि हमारे पास थे, 1.5 करोड़ के हथियार आए हैं, तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है कि प्याज मूली है कि गोश्त में डालकर चल पड़े। 7 करोड़ रुपए में मर्डर कराना, इसका मतलब किसी ना किसी चेन के थ्रू पैसा गया है। उसमें हवाला भी इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि गैंगस्टर लंदन बैठे हैं। लेकिन अगर सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे तो उसका मतलब सरकार इन्वॉल्व है ना। तो ये थी पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देख रहे थे